رحم اللہ علی من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتغت بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين هم منار الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وانذر عشيرتك الأقربين۔ درود پڑھیں مل کر محمد وآلہ سامعین محترم، مقام شکر ہے کہ ہم اس مذہب سے وابستہ ہیں، جو مذہب ہر مذہب سے، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے بہتر ہے، جامع ہے، مانع ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور ہمارے جتنے رہنما ہیں وہ اپنے اپنے دور میں اور ہر دور میں ہر فرد سے افضل ہیں۔ حضرت علی جتنی بھی صفات کمال ہم جمع کر لیں، جتنی بھی ہو، جو بھی صفات کمال، جو بھی کمال کی صفت ہو، اور جتنی صفات کمال ہو سکتی ہیں کسی انسان کامل میں، اس ہر صفت میں ہم اپنے مولا کو اعلیٰ پائیں گے، عرفہ پائیں گے، بہتر پائیں گے، برتر پائیں گے، ہر ایک سے افضل پائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں فخر اس بات پر کہ ہمارے امام علی ہیں، ہمیں فخر اس بات پر کہ ہم ہمارے امام کے ماننے والے ہیں۔ ہم چھپاتے نہیں ہیں، چھپائے گا وہ جہاں کمی ہوگی، جہاں خامی ہوگی، جہاں کوئی نقص ہوگا، جہاں کوئی عیب ہوگا، اور اسی لیے وہ بھی باپ کے نام کو چھپاتا ہے جہاں عیب ہوتا ہے۔ اور علی وہ ہیں جو ہر وقت کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ ہر میدان میں ابو طالب کا تذکرہ کیا ہے، ابو طالب کا تذکرہ کر کے ابو طالب کے ایمان کی وضاحت کی ہے کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کا باپ کیسا ہوگا، کل ایمان کا باپ ہوگا۔ درود پڑھیں مل کر محمد وآلہ۔ آج دنیا میں جو مذاہب ہیں، سب سے زیادہ اسٹیبلش، سب سے زیادہ محکم، سب سے زیادہ مرتب اور سب سے زیادہ منظم جو مذہب ہے وہ ہمارا مذہب ہے۔ اور صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ حدیث کا کلیکشن سب سے ہمارے ہاں پہلے کیا گیا، جبکہ دوسروں نے 100 سال کے بعد کیا۔ ہمارے ہاں قرآن سب سے پہلے جمع ہوا، جبکہ بعد میں کوشش کی گئی۔ اور جیسا کہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، اول من جمع القرآن علی بن ابی طالب، سب سے پہلے حضرت علی نے قرآن جمع کیا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ لکھا ہے جلال سیوطی نے، حضور کی خدمت میں قرآن جمع کر کے پیش کر دیا۔ وہ جو روایت ہے نا کہ آپ نے کہا تھا میں اس وقت تک رضا نہیں ہوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں، وہ ترتیبی نزولی لحاظ سے تھا، یعنی نزولی اعتبار سے جو قرآن تھا، لیکن جو قرآن جمع کیا گیا تھا جس ترتیب سے توقیفی کہلاتا ہے، وہ جمع کر کے حضور کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کر دیا۔ لہذا تمام مومنین کو قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی تحریف ہوئی ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ خود سوچیں، اللہ
जिस इंसान की हिफाजत करता है वो मासूम कहलाता है, और जिस किताब की हिफाजत करता है वो मसून अनिल खता कहलाती है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू हाफ़िज़ून, हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जिसकी हिफाजत कर रहा हो, ला यातिहिल बातिल में बैन यदैहि वला मिन खल्फिही, न बातिल इसके सामने से आ सकता है न पीछे से आ सकता है। ये तो हकीम अजीज़ की किताब है। पता चला अल्लाह का वो कलाम है जो अल्लाह ने खुद जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। जिस इंसान की हिफाजत करे वो इंसान मासूम होता है, और जिस किताब की हिफाजत करे वो तहरीफ से महफूज रहती है। दुरूद पढ़ मिलकर मोहम्मद वाले ये दुरुस्त है कि आपने रोज़ा रखा था, आप थके हुए हैं, नींद आ रही होगी, नींद का गलबा होगा, लेकिन चंद कलिमात सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ नहव पर काम हुआ है, सर्फ पर काम हुआ है, मानवी बयान पे काम हुआ है, बलागत पे काम हुआ है, तफसीर पे काम हुआ है। लिहाजा हम शर्मिंदा नहीं किसी बात से कि हम किसी से पीछे हैं इस फील्ड में। हमारे उलमा ने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है, और ये दीन बड़ी स्ट्रगल के बाद हम तक इस हालत में पहुंचा है। इसके लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं। काविशी की काश हम उन खिदमात को जानते कि उलमा ने ऐसे दौर में जबकि नाम अली लेना जुर्म था, ख़ता था और गलती थी, ऐसे आलम में भी उन्होंने किताबें मुरतब की और हम तक कोशिशों से काविशों से किताब पहुँचाई। बहुत से लोगों को इस राह में कत्ल कर दिया गया, बहुत से लोगों को तहज़ीर कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ें पहुँची। देखिए आज का दौर जो है इसमें सब कुछ है, लेकिन तालीम तो है लेकिन तरबियत का फुकदान है, और तरबियत के फुकदान की वजह से आज जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत से मसाइल हमारे दरमियान में हैं। तलाक़ के मसाइल हैं, बच्चों के बिगड़ जाने के मसाइल हैं, बच्चे गलत जगह शादी कर लेते हैं उसके मसाइल हैं, बहुत से ऐसे मसाइल क्यों हैं? क्योंकि तालीम तो है, तरबियत नहीं है। तालीम है, तरबियत नहीं है। पहले क्या होता था, तालीम भी होती थी और तरबियत भी होती थी, और तरबियत ही इंसान को और हर शय को कुछ से कुछ बना देती है। मसलन जिस पत्थर की तराश खराश की जाती है वो पत्थर हीरा बन जाता है। ये तरबियत ही तो है, उसे हीरा बना देता है, ये तरबियत तो है। तो अब इंसान जो है अगर तरबियत, तो आप देखें कि तरबियत बहुत बड़ी चीज़ है, और उस तरबियत में अगर हज़रत अबू तालिब और हज़रत अबू तालिब अगर किसी की तरबियत करते हैं, और हज़रत अबू तालिब और हज़रत फातिमा बिन्त असद किसी की तरबियत करते हैं, तो वो तरबियत पाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन जाया करता है। दुरूद पढ़ें मिलकर मोहम्मद वाले। ये तरबियत है। और जब 8 साल की उम्र थी हुज़ूर सरवर कायनात की, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, उस वक्त सारे चचा बैठे हुए थे और रसूलुल्लाह के, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दादा थे उन्होंने कहा तुम जिसे चाहे पसंद कर लो। अब इख्तियार था हुजूर का 8 साल की उम्र में कि जिसको चाहे पसंद करें वो इनकी तरबियत करेगा। अब गए देखते हैं और आखिरकार हज़रत अबू तालिब के कंधे पर जाकर हाथ रख दिया, कहा मुझे इनके पास जाना है, मुझे इनके पास जाना है। कौन सी बात थी जो अबू तालिब में देखी थी, कौन सी चीज़ थी जो अबू तालिब की तरफ माइल कर रही थी? तो मानना पड़ेगा कि अबू तालिब को गोया के कुदरत की तरफ से इंतज़ाम किया गया था, या अगर कोई हामी हो तो अबू तालिब जैसा हो। अबू तालिब जैसे फ़र्द ने जब मदद की है और नुसरत की और हिमायत की है, 8 साल से लेकर जब पैगम्बर की उम्र 50 साल तक हुई, 50 साल तक, उस वक्त तक मुसलसल 42 साल जिस हस्ती ने अपने साथ रखा है, दुख में सुख में हर एतबार से तरबियत की है, वो अबू तालिब हैं। और माँ जिन्हें कहते थे माँ, हज़रत फातिमा बिन्त असद हैं। तो अली के बाप वो हैं जो अबू तालिब हैं, और अली की वालदा वो हैं जो फातिमा बिन्त असद हैं, जिनकी तरबियत रसूल को रसूल बनाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलाती है, और तरबियत से ये आलम है। तो आप बताइए 6 साल की उम्र में जिसकी आगोश तरबियत में जा रहे हों, उस हस्ती का नाम अली है। अली को नबी ने ले लिया था 6 साल की उम्र में, जबकि अली थे, कहा इनकी तरबियत मैं करूँगा, इनकी परवरिश मैं करूँगा। शब रोज़ हज़रत अली रसूल के साथ रहते थे, चाहे जागना हो या सोना हो, उठना हो या बैठना हो, खाना हो या पीना हो, सफ़र हो या हज़र हो, हर वक्त रसूल के साथ साथ रहे हैं, साथ साथ रहे। ज़रा सोचें कि जो साथ रसूल के रहा हो, रसूल के रंग को अपनाया, रसूल के ढंग को अपनाया, रसूल के तरीक़े को अपनाया, रसूल की फ़िक्र को अपनाया, रसूल के इल्म को अपनाया, रसूल ने जो कुछ भी था वो अली को दे दिया। और शुरू में जब गोद में लिया था तो ज़बान चुसाई थी,
اور زبان چسا کر کہا تھا اے علی یہ زبان تمہیں دے رہا ہوں یا تم مجھے زبان دے رہے ہو کہ دیکھو تمہیں نصرت کرنی ہے، تمہیں مدد کرنی ہے، تمہیں حمایت کرنی ہے، تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو علی کی جس نے تربیت کی ہے وہ ذات ہے پیغمبر کی۔ اب پیغمبر کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، ایسی ذات جس ہستی نے علی کو پالا ہو، پرورش کی ہو۔ جب ابو طالب جس کی پرورش کرتے ہیں توجہ تو وہ نبی محمد رسول اللہ بن جاتا ہے۔ تو جس کی نبی نے تربیت کی ہو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا نام ہوگا، اس کی کیا اسی بات کو مولا نے اپنے خطبے میں بیان کیا ہے۔ یہ خطبہ یہ جو نہج البلاغہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس عربی میں ہے، اس کا نام ہے عرض الخاص، یعنی خاص اسپیشل پیشکش تھی، اور میں نے یہ مدینہ منورہ سے خریدی تھی کتاب، خاص طریقے سے مدینہ منورہ سے کتاب خریدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ملتی، یہ کتاب عام تھی اور ہر جگہ اویلیبل، پہلے نہیں ملتی تھی لیکن بعد میں یہ کتاب اویلیبل ہوئی، وہی سے میں نے خریدی۔ اس میں حضرت علی فرماتے ہیں انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب، یہ خطبہ قاسیہ کے الفاظ ہیں کہ بچپن میں میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑا ہے۔ علی بتاتے ہیں بچپن میں میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑا ہے۔ وَكَسَرْتُ نَوَا جَمَا قُرُونَ رَبِيَةَ مُضَر، اور ربیع و مضر کے جو بڑے یعنی وہ لوگ تھے ان کے سینگوں کو توڑ دیا ہے، یعنی ان کے بڑے بڑے بہادروں کو شکست دی ہے ربیع اور مضر کے۔ وَقَدْ عَلِمْتُمْ وَعْدِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، تمہیں جانتے ہو رسول سے مجھے کیا قرابت حاصل ہے، بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخصیصہ، مخصوص منزل حاصل ہے۔ وضعنی فی ہجرہ وانا ولد، جب میں بچہ تھا نبی نے مجھے گود میں لیا تھا، نبی نے مجھے گود میں لیا تھا۔ یضمنی الی صدرہ، اپنے سینے سے لگایا تھا۔ یعنی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کس طرح میری تربیت کی ہے، پرورش کی ہے۔ اور پھر کہا یکفنونی فراشی، اور اپنے بستر پر سلاتے تھے، اور یسمنی جسدہ، اپنے جسم کو میرے جسم سے مس کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں یشمنی عرفہ، میں نبی کی خوشبو سونگھا کرتا تھا، میں نبی کی خوشبو سونگھا کرتا تھا۔ وَكَانَ يَمْضُغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يَأْكُلُ، پہلے وہ خود چباتے تھے اور چبا کر مجھے کھلاتے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر کا بچہ یا کوئی بھی ہوتا ہے اسی طرح سے پہلے وہ چبا لیتا ہے اور پھر کھلاتا ہے، تو کہا کہ وہ چباتے تھے اور پھر کھلاتے تھے۔ وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةٌ فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةٌ فِي فِعْلٍ وَلَقَدْ قَرَّ اللَّهُ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ تب بتائیے دو گواہیاں چلی، ایک ہے علی کی گواہی جو ساتھ رہے، اور ایک ہے اس کی گواہی جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں پیغمبر کو، اور حدیث کا روایت کرنے والا، اب چاہے وہ انس بن مالک ہو یا چاہے کوئی خاتون ہو۔ اب یہ جو روایت کرنے والے وحی کی روایت کرتے ہیں، پہلی وحی کی، اب ایک وحی کی روایت علی سے آئی ہے، وہ علی جو ساتھ ہیں، وہ علی جو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، سفر میں بھی حضر میں بھی، میں ہر وقت نبی کے ساتھ رہا ہوں، دن میں بھی اور رات میں بھی، ہر لمحے میں ساتھ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا جو فرشتہ آتا تھا وہی لاتا تھا، اور ساری باتیں۔ اور ایک طرف گواہی کس کی ہے؟ اس کی کہ جو ظاہر ہے بعض روایت ان لوگوں کی ہے جو پیدا بھی نہیں ہوئے، جن کی ولادت بھی بعد میں ہوئی ہے، وہ وحی کی روایت کر رہے ہیں۔ اب پہلی روایت جو صحیح بخاری میں وحی کی ہے وہ کیا ہے کہ جب پہلی وحی آئی ہے تو اس وقت حضور سرور کائنات پر جبریل آیا اور کہنے لگا اقرا، اے محمد پڑھو، تو انہوں نے کہا مانا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اقرا کا پڑھو، کہا مانا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ کہا اور دبایا، ان کو دبا کے چھوڑ دیا۔ تو اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے تو پھر تعلیم کا یہ طریقہ رائج ہونا چاہیے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس لیے کسی کو دبا کے بھینچو اور بھینچ کے چھوڑ دو تو اسے علم آ جائے گا۔ تو اسکول میں اگر یہی طریقہ رائج ہو جائے صحیح بخاری کے کہنے پر تو پھر بہترین طریقہ ہوگا کہ بھائی اس طرح علم دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ روایت ظاہر ہے کہ خود اس میں نقائص ہیں روایت میں بہت زیادہ، راوی کے اعتبار سے بھی اور فکر کے، اس لیے کہ کوئی چیز بھی آپ دیکھیں وہ اگر پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے یا لکھی ہوئی تھی یا زبانی تھی۔ اب اگر لکھی ہوئی تھی دیکھ کے پڑھنا تھا تو لکھی ہوئی تو کوئی بتاتا نہیں ہے، کہا وہ کہتے جو میں کہتا جاؤں تو پڑھتے جاؤ۔ تو ایک جب نکاح ہوتا ہے اور ملا کہتا ہے اس سے یہ پڑھو تو وہ تو آدمی جو عربی نہیں بھی جانتا وہ بھی نکاح کے کلمات پڑھتا چلا جاتا ہے، ایک عامی بھی پڑھتا جاتا ہے، اور عرب کا بنی ہاشم کا فرد کیسے نہیں پڑھے گا؟ تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن جب 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں
वो इकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़ो। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसे कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यालम, इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो इंसान नहीं जानता था, वो कुछ सिखा दिया। अब आप बताइए, पढ़ने का जिक्र है, पढ़ाने का जिक्र है, कलम का जिक्र है, अखलाक का तकाज़ा क्या है? क्या पढ़ने का जिक्र उससे किया जाएगा जो पढ़ा लिखा ना हो? क्या इल्म का जिक्र उससे किया जाएगा जो पढ़ा लिखा ना हो? क्या कलम का तस्करा उससे किया जाएगा जो लिखना न जानता हो? ये तो तहजीब के खिलाफ बात है। पैगंबर जो पूरी दुनिया को पढ़ाने आया है, युअल्लिमुहुल किताब और हिकमा, उसको जाहिल साबित किया जा रहा है। इसी के खुद आलिम बन नहीं सकते, का इन्हें जाहिल बना दो, इन्हें अपनी सतह पर ले आओ। अब उसकी गवाही जो नबी के साथ रहा हो, मैं सिर्फ यहाँ तक तमहीद के तौर पर आपको लाया था कि नबी की गवाही क्या है, नबी अली की गवाही क्या है जो नबी के साथ रहे। अली कहते हैं कि वलक़द कुन्तु अत्तबअहु इत्तिबाअल फ़सील असरम में, मैं इस तरह नबी के पीछे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके पीछे पीछे अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है, बिल्कुल पीछे जाता है। और यरफ़अली फ़ी कुल्लि यौमिन अख़लाक़ी अलमन, पैगम्बर हर रोज़ अखलाक की नई नई बातें मुझे सिखाते थे। वह यामुरुनी बिइक़्तिदा बिही, और मुझे इक़्तिदा और पैरवी करने का हुक्म देते थे। वलक़द कान युजाविरु फ़ी कुल्लि सनतिन बिहिरा, वो हर साल गारे हिरा में जाते थे। फ़अराहु व ला यराहु गैरी, मैं उन्हें देखता था, मेरे अलावा कोई देखने वाला उन्हें नहीं था, मैं उन्हें देखता था, मेरे अलावा कोई न था। वलम यजमा बैतुन वाहिदुन, अब कहते हैं उस वक्त कोई घर इस्लाम में बज़ाहिर न था सिवाय रसूलुल्लाह के, खदीजा के, और मैं उनमें तीसरा था, मैं उनमें तीसरा था। अब अली क्या गवाही देते हैं वही के बारे में? अरा नूरल वही वर रिसाला, मैं वही के नूर को और रिसालत के नूर को देख रहा था। पता चला वही वो नहीं है जिसका तज़किरा बुखारी में है कि दबाया और छोड़ दिया, का वही एक नूर का नाम है और रिसालत एक नूर का नाम है। वशुम रिहन नबुआ, और मैं नबुवत की खुशबू को सूंघ रहा था और रिसालत के नूर को देख रहा था। तो अब गवाही अली की इतनी मोतबर है कि वही एक नूर का नाम है। तो अगर नूर नूर पर नाजिल हो तो फिर घबराने की क्या बात है, परेशानी का क्या मसला है? रोज पढ़े मिलकर मोहम्मद वाली मोहम्मद। अब फरमाते वलक़द समिअतु रन्नत शैतान, मैंने रन्नत शैतान ही नज़ल वही, जब वही नाजिल हुई तो मैंने शैतान की चीख सुनी। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा हाज़ा रन्नत, ये चीख क्या है? फ़क़ाल हाज़ा शैतान अयसा मिन इबादतिही, कि आज शैतान अपनी इबादत से मायूस हो गया। शैतान इबादत से कब मायूस हुआ था? जब वही आई थी। और कुफ़ार कब मायूस हुए थे? तवज्जो, अगर आपको आयत याद हो, अल-यौमा यअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज काफिर तुम्हारे दीन के बारे में मायूस हुआ। फला तख़शौहुम, तुम मत डरो, सिर्फ मुझसे डरो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। जब वहाँ पर गदीर खुम के मकाम पर जब कहा था ना मन कुन्तु मौला फौलिन मौला, तो उस वक्त काफिर मायूस हुआ था और यह शैतान मायूस हो गया। अली को पढ़ाते हैं, अली को खुदा बनाते हैं। अली के लिए खुदा होना ज़ेबा नहीं है, अली तो अल्लाह के बंदे हैं। ऐसी बंदगी को जो अज़मत है खुदाई में नहीं है। अली को खुदा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए जो नुसैरी खुदा बनाते हैं और आपको तारीफ़ें करते मत किया करें, कोई ज़रूरी नहीं है इसलिए कि नुसैरी जाने वो जाने। हम तो ज़ाहिर है अली के पैरोकार हैं, अली ने इबादत की, हम मालूम है खुदा को क्यों जानते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि अली अगर नमाज न पढ़ते तो हम भी ना पढ़ते। अली ने नमाज पढ़ के बताया वो खुदा है, वो रब है जो भी उसकी इबादत करती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के बताया। अब सुनिए जो अली का फज़ाइल है, ये गुलू नहीं है, इसीलिए मैंने तमहीद बांधी है, ये गुलू नहीं है। ये लहजुल बलागा से मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें अल्फाज हैं इन्नका अली, रसूल फरमाते इन्नका तस्मउ मा अस्मउ,
वत्तरा मा अरा, अली तुम वही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ, तुम वही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ, और तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। पहले क्या कहा कि नबी इसीलिए क्या कहा, अरा नूरल वही, मैं देख रहा था वही के नूर को, रिसालत के नूर को। तो गोया के अली भी नूरे रिसालत को देख रहे थे, अली वही को देख रहे थे, अली सुन रहे थे वली के कलिमात को, वही नबी पर नाजिल हुई और अली सुन रहे थे। तो नबी का क्या कहना है, तस्दीक करना है, अरे नबी जो कुछ तुम सुन रहे हो मैं सुन रहा हूँ, जो तुम देख रहे हो मैं देख रहा हूँ, लेकिन फर्क है इल्ला अन्नका लस्त बिनबीन, तुम नबी नहीं हो, वलाकिन्नका वज़ीरुन, बल्कि तुम वज़ीर हो, व इन्नका लअला खैर, और तुम भलाई पर हो। यानी बता दिया और फैसला कर दिया। देखिए क्यों सुनता है, इसलिए कि वही सुन सकता है आवाज को कि जिसकी जिन्स वही हो जो नबी की जिन्स है। तो अब मानना पड़ेगा जब नबी नूर है और अली भी नूर हैं, अना वाली में नूर वाहिद है, अली और नबी एक ही नूर के दो हिस्से हैं। जब नूर का एक हिस्सा सुन रहा है तो दूसरा भी सुन रहा है, जब एक हिस्सा देख रहा है तो दूसरा भी देख रहा है। अगर ये अली और नबी को मान गए होते, कसम खुदा की ये कब का सुधर गए होते, न होती कर्ब बला, न जलता मेरे दरे बतूल का घर, कसम खुदा की ये तीनों बचपन में मर गए होते। मेरे वक्त जो है थोड़ा सा बहुत कम होता है, लिहाजा बस सिर्फ नारे तक रहे और बाकी बातें छोड़ दें। मैंने जो आपकी खिदमत में आयत पढ़ी थी, अब ज़ाहिर वक्त बहुत कम है और मैं वादे के मुताबिक बहुत कम वक्त दूंगा और इंशाअल्लाह वो ख़त्म करूंगा। वो है कि वंज़िर अशीरतल अक़रबीन, इस्लाम में सबसे पहले अली, जैसा कि आपको मैंने बताया आज ये था कि अली की तरबियत रसूल ने की। सबसे पहले अली ने रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, सबसे पहले अली ने नमाज पढ़ी। अब ये सवाल है कि अली कब मुसलमान हुए, तो ये सवाल करो नबी कब मुसलमान हुए। जब नबी के लिए सवाल नहीं है तो अली के लिए भी सवाल नहीं हो सकता। अली कब मुसलमान न थे, अली कब मुसलमान न थे, इसलिए कि कुरान कह रहा है, कुरान गवाही दे रहा है और इसके लिए खुतबा भी है। खुतबा है कि वो नहीं पढ़ता, बगदाद सर्फ होगा, खुतबा मौजूद है अली इब्न अबी तालिब का। अब है कुरान क्या कहता है, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, इब्राहिम इसमाइल दुआ कर रहे हैं, परवरदिगारा तू हमें अपना मुस्लिम बना, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी औलाद में से एक उम्मत जो मुसलमान हो हर दौर में बनाता रहे। वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, और उसी उम्मत में एक रसूल को भेजना जो इसका ताल्लुक उससे हो, यानी उम्मत मुस्लिमा में से रसूल आए। तो उम्मत मुस्लिमा का वजूद जरूरी है हर दौर में जिसमें रसूल आए। और फिर कुरान का लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है, काफिरों पे नहीं। समझो, मोमिनों पे एहसान किया है तो उनमें एक रसूल को भेजा जो उन्हीं में से है। तो आने वाला रसूल मोमिन है भाई, जो मोमिन रसूल है, अबू तालिब मोमिन है, तो मोमिन क्यों कलमा पढ़ेगा। और फिर लिखने वाला लिखा कि ना अबू तालिब की पेशानी बुतों के सामने झुकी, ना मोहम्मद की पेशानी झुकी, ना अली की पेशानी झुकी। इसीलिए तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, वो युक़ाल लहू कर्रमल्लाहु वजहहू, अली के नाम के आगे रज़ियल्लाह नहीं कहते, कर्रमल्लाहु वजहहू कहते हैं। इसका मफ़हूम क्या है, जब पूछा गया कि अल्लाह ने इनके चेहरे को मुकर्रम रखा, यानी बुतों के सामने अली ने अपना चेहरा नहीं झुकाया, तो बात साबित हो गई कि जिसने बुतों के सामने चेहरा न झुकाया हो वो कर्रमल्लाहु वजहहू है, और जिसने झुकाया उसके बारे में कुछ नहीं कहता। इसलिए कि रज़ियल्लाह और हैं और कर्रमल्लाह और हैं। कर्रमल्लाह का लफ्ज़ बता रहा है कि अल्लाह ने उनके चेहरे को इज्जत वाला, ये अपनी अपनी किस्मत है, अल्लाह जिसके चेहरे को चाहे इज्जत वाला रखे और जिसकी चेहरे को चाहे न रखे, तो ये कर्रमल्लाह वजहू हैं। और अल्लाह ने तो ये, और कुरान क्या कह रहा है कि एक उम्मत मुस्लिमा में आए, उम्मत मुस्लिमा में। तो अब या तो हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम ईमान साबित करें, जिम्मेदारी उसकी है कि कुफ्र साबित कर दो। जिसका कुफ्र साबित नहीं है तो उसके लिए ये सवाल मत करो कि कब इस्लाम लाए, और कब का जो सवाल है उसके लिए है जो बुतों को सजदा करता रहा हो। ये तो बुतों के तोड़ने वाले हैं, ये बुतों से जोड़ने वाले नहीं हैं, रिश्ता जोड़ने वाले नहीं है, बुतों को तोड़ने वाले हैं। तो अब ये और हैं, तोड़ने वाले और होते हैं, रिश्ता जोड़ने वाले और होते हैं।
अब ये जो अली इब्न अबी तालिब पहले हैं जिन्होंने नमाज पढ़ी और हुजूर सरवर कायनात के पीछे। अब जब हज़रत अली की उम्र 10 साल की थी उस वक्त वही आई पैगंबर पर। 3 साल के बाद ये कुरान की आयत आई, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अब अपने क़राबतदारों को डराइए। 13 साल की उम्र अली की है। आप ही बताइए कि ये नबी ने इंतज़ार क्यों किया? नबी ने इंतज़ार क्यों किया? जब हज़रत ईसा आगोश मादर में कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताब व जअलनी नबिया, तो फिर रसूल क्यों इंतज़ार कर रहे हैं 40 साल तक? बात यह है कि रसूल किसी हामी का, किसी नासिर का, किसी मददगार का अबू तालिब के बाद इंतज़ार कर रहे थे और इसीलिए तरबियत कर रहे थे कि ये जो है जिसकी मैं तरबियत कर रहा हूँ ये मेरे बाद मेरा मददगार होगा, मेरा हामी होगा, मेरे साथ मदद करेगा और मेरे बाद दीन को संभालेगा, ज़मा में हुकूमत को संभालेगा, इख्तियार को संभालेगा। तो अब नबी तरबियत कर रहे थे। तो अब यानी निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते थे। निज़ाम मुस्तफ़ा जो नबी जो निज़ाम ला रहे थे उसका नाम था निज़ाम मुस्तफ़ा। तो निज़ाम मुस्तफ़ा आ नहीं सकता था जब तक इंतज़ाम मुर्तज़ा ना हो, जब तक इंतज़ाम मुर्तज़ा ना हो। तो अब इंतज़ाम मुर्तज़ा ज़रूरी था निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। और इंतज़ाम क्या है? 13 साल की उम्र में जब आयत नाज़िल हुई तो मेरे पास तफसीर बगावी बहुत मशहूर तफसीर है, उसमें डिटेल लिखा है दावतुल शियर के बारे में। उसमें लिखा है कि उसमें अल्लाह की तरफ से तहदीद भी आई कि अगर तुमने नहीं पहुँचाया तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा और फिर इस्लाम की बका के लिए ज़रूरी है। यानी जिस तरीके से वह लम तफ़अल वहाँ पर गदीर खुम के लिए है, यहाँ भी इस आयत के लिए है। आयत में तो नहीं है लेकिन यहाँ भी यह है कि पहुँचाना ज़रूरी है, पहुँचाना ज़रूरी है, तबलीग ज़रूरी है। लिहाजा हुजूर सरवर कायनात इंतज़ाम किसके ज़िम्मे? और फिर घर कौन सा था? आप कहते हैं कि घर ज़ाहिर हज़रत अबू तालिब का घर इस मकसद के लिए तय पाया। कहते हैं 40 अफराद को दावत दी गई जो बनी अब्दुल मुत्तलिब थे या बनी हाशिम थे। 40 अफराद जैसा कि लिखा गया है। कहते हैं एक आध कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन 40 की तादाद अक्सर लिखी है। और कुरान की आयत क्या है? अब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। उसमें अबू लहब भी है, हज़रत हमज़ा भी हैं और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी हैं और बाकी लोग सब मौजूद हैं, अबू लहब भी है, ये सारे लोग मौजूद हैं और कमोबेश 40 अफराद हैं। अली को इंतज़ाम सुपुर्द किया जाता है। घर कौन सा है? हज़रत अबू तालिब का। अब अगर बताइए कि अबू तालिब मुखालिफ होते तो अपना घर क्यों देते इस्लाम के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए? और इंतज़ाम किसको दिया? हज़रत अबू तालिब को नहीं दिया। इंतज़ाम किसी चचा को नहीं दिया, इंतज़ाम किसी अबू तालिब, इंतज़ाम सिर्फ हज़रत अली को दिया। रसूल ने अली से कहा है अली तुम इंतज़ाम करो और अली ने पूरा दावत का इंतज़ाम किया जो दावत ज़ुल-ए-शीरा के नाम से मौसूम है। बहुत मशहूर है इस्लाम में दावत ज़ुल-ए-शीरा। आपने कहा एक साथ खाना तैयार कराओ और बकरी की एक जो है वो चाहिए टांग हो और वो ले लो और उसके बाद से और कुछ दूध का एक प्याला हो, तो इतना खाना है। उसमें रसूल ने थोड़ा सा लेके और उसको चबा के छोड़ दिया और उसके बाद से बरकत हो गई। जितने लोग थे सब ने शेयर होकर खाया, शेयर होकर खाया। तो अबू लहब ने बोलने नहीं दिया और अबू लहब ने कहा कि क्या बात है, हुजूर सरवर कायनात ने खड़े हुए कोई तकरीर करनी चाहिए। उसने लोगों को अच्छा इसलिए बुलाया था कि तुम दीन की बातें करना चाहते हो। अबू लहब ने सबको उठा दिया। जब रसूल ने कहना ही चाहा था कि उसने उठा दिया और लोग चले गए। खाना पहले खिला दिया था। खाना पहले खिलाने का नुकसान होता है कि लोग चले जाते हैं, खाना हमेशा बाद में खिलाना चाहिए। तो अब ज़ाहिर ने पहले खिला दिया, फिर जब चले गए कोई बात नहीं। अली से कहा दोबारा फिर दावत का इंतज़ाम करो। दोबारा फिर दावत का इंतज़ाम हुआ। जब दावत का इंतज़ाम हुआ तो इस वक्त हज़रत अबू तालिब ज़ाहिर के थे और अबू लहब भी था। तो अबू लहब जो है रसूलुल्लाह ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए कोई शख्स ऐसा पैगाम नहीं लाया होगा जैसे मैं लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए दीन और दुनिया की सबकी भलाई का पैगाम लेकर आया हूँ और तुम मेरे बारे में क्या समझते हो? कहा कि अगर आप कहें कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर जर्रार पोशीदा तुम आपको मानेंगे। कहा तुम तस्लीम करो? कहा क्योंकि आप सच्चे हैं और अमीन भी हैं। तो कहा जब तुम मुझे सच्चा मानते हो तो फिर मैं कहता हूँ कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पा जाओगे। तो अब जाहिर है कि उस वक्त जब ऐलान करना चाहा तो फिर अबू लहब खड़ा हुआ। अब जो बाद लोग पढ़ते हैं वो इस अंदाज से कि एक तरफ से अबू लहब खड़ा हुआ, उधर से अबू तालिब खड़े हुए और अबू तालिब ने खड़े होकर कहा कुम या, है ना, कुम या सैयदी व मौलाई, ये अल्फाज इस्तेमाल किया अबू तालिब ने, कुम या सैयदी व मौलाई। अबू तालिब ने रसूल को क्या कहा? मेरे सरदार और मेरे मौला खड़े हों। और फिर कहा वह बल्लिग रिसालात रब्बिका, अपने रब के पैगाम को पहुंचा दे। और उधर उससे कहा उसकुत, और अबू लहब को खामोश कर दिया, अबू लहब को बिठा दिया। अबू तालिब हिमायत के लिए खड़े हो गए। अब रसूल ने कहा
اور رسول نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچایا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ میں لے کر آیا ہوں. اور کیا الفاظ کہے کہ قم یا سیدی و مولائی و بلغ رسالات ربک. یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا، یہ الفاظ کہے تھے اور یہی وہ الفاظ ہیں جو بعد میں اللہ نے بھی استعمال کیے. سیدی و مولائی کا لفظ کہا تھا، کہا جب تو صحیح کہ جب میں غدیر خم میں یہی الفاظ کہوں، اور وہی الفاظ تھا من کنت مولا ہو فولی مولا وہ بلغ رسالات رب کا، اپنے رب کے پیغام کو، اور کہا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وہی الفاظ جو ابو طالب نے کہے تھے وہی الفاظ قرآن میں ہیں. اب جو آپ کو یہاں رک کے کہنا اور بتانا ہے کہ لکھنے والوں نے، تحریر کرنے والوں نے اس کو بہت زیادہ مٹا دیا اور مسخ کر دیا. ورنہ میرے پاس کتابوں کے بے شمار حوالے موجود ہیں، جس میں سے یہ جو کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حیات محمد ہے. حیات محمد رسول اللہ، اور بہت بڑے رائٹر ہیں حسنین ہیکل، یہ ان کی کتاب ہے. اور یہ محمد حسنین ہیکل کے نام سے یہ مصر کے بہت بڑے رائٹر تھے اور ان کی کتاب ہے حیات محمد. یہ پہلا اس کا ایڈیشن ہے. پہلے ایڈیشن میں جب انہوں نے اس کا لکھا ہے تو کہا کہ اور بلایا رسول نے، اور اس کے بعد سے کہا اس میں کہ کھانے کے لیے بلایا اور ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ دیکھو، اور کہتے ہیں کون ہے ایکم، اس میں الفاظ ہیں وہی میں اس سے پڑھا ہوں. قد امرنی ربی ان ادعوکم الیہ، میں تمہارے لیے دین و دنیا، خیر دنیا والآخرہ، دنیا آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں. فایکم یعاذرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا. وَيَكُونَ أَخِي وَوَصِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، اور وہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہیں میرا خلیفہ ہوگا. فَأَعْرَضُ عَنْهُ وَهُمْ بِذَلِكَ، سب نے اعراض کیا اور چھوڑ دیا. لیکن علی النہض، اور علی اٹھ کھڑے ہوئے. ما یزال الصبیۃ دون علم، ابھی علی بالغ پہ نہیں ہوئے تھے. انا یا رسول اللہ، میں رسول اللہ حاضر ہوں اعونک، انا حرب علی من حاربت، میں جنگ ہوں اس کے لیے جس آپ سے جنگ کرے گا. فابتسم بنو ہاشم وقہقہ بعضهم، بنی ہاشم نے مسکرائے اور بعضوں نے قہقہ لگایا. وجعل نظرهم ينتقل من الی ابی طالب، اور وہ منتقل ہوئے ان کی نگاہ ابو طالب کی طرف اور کہا الی ابنہ. ثم انصرفوا مسلمین، کہا کہ یہ دیکھو اب پہلے تو اطاعت تھی رسول کی، اب اطاعت بیٹے کی بھی فرض ہے. یہ انہوں نے یوں رکھا کہ میرے بعد جو بھی ہوگا وہ خلیفہ ہوگا. بہت سی کتابیں ہیں جس میں موجود ہے. جب انہوں نے یہ کتاب شائع کی تو ان پر الزام لگا رہے تم نے تو سب کچھ کہہ دیا کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا. تو اب تو ساری عمارت گر جائے گی اگر ہم تسلیم کر لیں گے. جب دوسرا ایڈیشن اس کا نکلا تو انہوں نے عبارت کو نکال دیا. یہ تحریف کی جا رہی ہے آج کل کتابوں میں. یہ میرے پاس بغداد میں جب میں گیا تو یہ میں نے وہاں سے نجف اشرف سے یہ کتاب خریدی تھی اور پہلا ایڈیشن مجھے مل گیا جس میں یہ موجود ہے. تو کیا کہا حضور نے؟ کوئی نہیں اٹھا. پہلی مرتبہ علی اٹھے بٹھا دیا، دوسری مرتبہ علی اٹھے بٹھا دیا، تیسری مرتبہ علی اٹھے تو کہا انا رسول اللہ، میں رسول اللہ اگرچہ کمسن ہوں لیکن میں ہر منزل میں آپ کی مدد کروں گا. تو پتہ چلا علی وہ ہیں جو ہر دور میں، ہر عصر میں نبی کے ناصر ہیں، نبی کے مددگار ہیں. اور کیوں نہ ہو، باپ کو مدد کرتے ہوئے جس نے دیکھا ہو اس کا بیٹا بھی ہر منزل میں مدد کرے گا. تو کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی حیات کا گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں علی نے نصرت کا حق ادا نہ کیا ہو. تو علی نام ہے ناصر پیغمبر کا، علی نام ہے ناصر رسول کا. درود پڑھ کر محمد بس گفتگو میں ختم کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ علی ہر اعتبار سے علی ہیں. اور آج وہی علی جو ہر محاذ میں پیش تھا، علی جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا. علی، اور علی کے سامنے کوئی بھی آتا، ظاہر علی نہ ڈرنے والے، نہ گھبرانے والے، نہ پریشان ہونے والے، لیکن یہ چھپ کر وار کیا گیا، پوشیدہ طور سے وار کیا گیا. اور جو تلوار تھی وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میں نے 1000 میں تلوار لی تھی اور 1000 ہی اس کے زہر پہ خرچ کیا گیا ہے. 1000 ہی زہر میں اس کو خرچ کیا گیا، زہر میں بجھائی گئی. اور زہر اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور اس کے زہر میں رکھی جاتی ہے تاکہ زہر سرایت کر جائے. ذرا سوچے تو صحیح
कि सामने से कोई वार नहीं कर सकता था। अली इब्न अबी तालिब ने बहुत जंगें लड़ी और किसी भी जंग में अली इब्न अबी तालिब में, लेकिन जो मुकाबला अम्र इब्न अब्द वद से था वो बड़ा बहादुर था, बड़ा बहादुर था। जब उसने हमला किया है तो इतना शदीद हमला था कि अली के होंठ को तोड़ती हुई और पेशानी तक जाकर तलवार लगी थी, पेशानी तक, और उस पेशानी पे जख्म हो गया था। जब इब्न मुलजिम ने वार किया है तो उसी पेशानी पर जाकर तलवार लगी है जहाँ पर अब अम्र इब्न अब्द वद का सर था, और उस पेशानी पर। और फिर जाहिर है कि आप सब सुन चुके हैं वाक़यात, आपने 2 दिन मुसलसल वाक़यात सुने हैं कि ये सुबह का वक्त था, अभी लोग नवाफिल पढ़ रहे थे और उसमें मस्जिद में बहुत कम लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, मस्जिद में अंधेरा भी था। अली नाफिला नमाज पढ़ रहे थे, अभी फ़र्ज नहीं, फ़र्ज तो इमाम हसन ने पढ़ा, ये बाद में आकर नमाज सुबह अली ने नाफिला पढ़ा था, और नाफिले की पहली रिकत में, और उसके बाद जब रुकू के बाद आप सजदे में गए हैं, सजदे से आपने सर उठाया है, इतनी में मलून ने ज़रबत मारी है, और ज़रबत का मारना था कि आवाज़ गूंजी है, और फिर अली की ज़बान से जो कलमा लिखा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह फुज़्तु रब्बिल काबा, फुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम पे कामयाब जा रहा हूँ, मैं कामयाब जा रहा हूँ। और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा सोचें क्या कैफियत हुई होगी जब मस्जिद में लोगों को जब ये आवाज़ पहुंची है ना, अली इब्न अबी तालिब कत्ल कर दिए गए, तहद्दमत वल्लाहि अर्कानुल हुदा, खुदा की कसम हिदायत के अरकान गिर गए। जब ये कहा कि ना हिदायत के अरकान गिर गए, तो उस वक्त क्या कैफियत होगी। हर जगह आवाज़ पहुंची है, हर एक ने आवाज़ सुनी, लोग अपने घरों से बेतहाशा दौड़े हैं। इधर ज़ैनब बिन कुलसूम ने जब आवाज़ सुनी है बेचैन हो गई हैं। अभी हसन हुसैन मस्जिद में नहीं आए थे, नमाज का वक्त नहीं था, आपने सबको भेजा है। अली की औलाद की तादाद 38 बताई जाती है या 37 बताई जाती है, इसमें 18 बेटे अली इब्न अबी तालिब के हैं। आप सोचें कि ये सब अली के बेटे और उस वक्त जिंदा हैं, मौजूद हैं, ये आए हैं और आने के बाद से जमा हो गए हैं। इमाम हसन से कहा है बेटा हसन तुम नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई है। उसके बाद इमाम हसन ने सर को बांध दिया है। लोग आ रहे हैं, मौला मौला कह के गिरिया कर रहे हैं। आप यहाँ मौजूद हैं, इसलिए तो मौजूद है ना क्योंकि अली इब्न अबी तालिब का तज़किरा है, जिन्हें हमारी जानें कुर्बान हो जाए, हमें जिनसे मोहब्बत है। आज हमारा वो इमाम हमसे जुदा हो रहा है। 19 की सुबह को ज़रबत लगी थी, 19 की सुबह को ज़रबत लगी थी। और इधर अली इब्न अबी तालिब को कहते मोहम्मद इब्न हनफिया से कहा कि तुम मुझे लेकर घर चलो। और वहाँ से जब लेकर चले हैं, लेकर रवाना हुए हैं, तमाम मजमा साथ है। इधर ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने पैगाम भेजा जल्दी बाबा को ले आओ, अगर नहीं लाए तो हम बाहर निकल आएंगी। कहा नहीं बाहर न निकलो। और उसके बाद अली इब्न अबी तालिब ने हसन को बुलाया, जब करीब घर आने वाला था, मजमा पूरा साथ था, बुलाया, हसन से कान कुछ कहा। हसन ने ऐलान किया लोगों बाबा कहते तुम चले जाओ, घर करीब आ रहा है। बाबा कहते अब तुम आगे ना आओ। पूछा कि क्यों ना आए? बाबा कहते हैं कि मेरी बेटियां रो रही हैं, मेरी बेटियां गिरिया को ना है, वो नहीं चाहते उनकी आवाज ना महरम के कानों तक पहुंचे। अल्लाह ने गिरिया किया, आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं कहूँगा मौला ज़ैनब उम्मे कुलसूम का इतना ख्याल था, ये वही तो आपकी बेटियां हैं जो करबला से शाम तक मेरे दांत फिराई गई। अल्लाह खुदा किसी गमन से मौला कायनात को घर लाया गया, हकीम को बुलाया गया। हकीम ने जब देखा तो बेहतरीन हकीम को, उसने कहा जहर इतना सरायत कर चुका है कि अब इनका बचना मुमकिन नहीं है। लिहाजा अली से कहा वसीयतें कर दें, इंशाल्लाह वसीयत कल मैं पढ़ूंगा कि क्या वसीयत की है। मौला कायनात ने आज की सिर्फ हद तक इतना है कि ज़ैनब गिरिया कर रही हैं, उम्मे कुलसूम रो रही हैं। हसन कहते हैं बाबा ये बताइए आप हमें किस पर छोड़े जा रहे हैं, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं बाबा, हम आपके बाद किस तरह जिंदा रहेंगे। हर एक बच्चा गिरिया कर रहा है। हर सहाबी हुज्र इब्न अदी जब मिलने आए हैं तो इमाम ने कहा हुज्र उस वक्त क्या कैफियत होगी जब तुमसे कहा जाएगा अली को बुरा कहो, का मौला हमारे टुकड़े कर दिए जाए, हमें टुकड़े कर दिया, फिर भी हम आपके लिए जान कुर्बान कर देंगे।
हुजर इब्न अदी ने और उनके साथियों ने मौला की मोहब्बत में जान दी थी और कुर्बान कर दी थी। अल्लाह फिर हसन को वसीयत की, बेटा हसन देखो तुम मुझे गुस्ल देना, हुसैन भी मदद करेंगे और अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार भी मदद करेंगे। और इस तरह से इन्होंने मदद की है। कहते हैं गुस्ल दिया गया कफन और कहा कि देखो वही हुनूत देना कि जो हुनूत बच गया है काफूर जन्नत जो आया था 3 हिस्से थे, एक रसूलुल्लाह को, एक फातिमा ज़हरा को और एक हिस्सा मेरे लिए बच गया है उससे हुनूत। और जब मेरी नमाज हो तो 7 तकबीरें पढ़ना, 7 मखसूस हैं तकबीरें मौला कायनात के लिए। हसन ने नमाज पढ़ी है और कहा देखो जब मेरा जनाजा उठाना तो फिर आगे से जनाजा खुद जाएगा और तुम पीछे से उसको उठाना, जनाजा खुद जाएगा और जहाँ जाए वहाँ चले जाना। और कहते हैं कि वो जब जहाँ से जनाजा गुजरता था इमारतें झुक जाती थी। एक मस्जिद हन्नाना भी है, वो मस्जिद खत्म हो गई थी, जनाजा गुजरा था। और जनाजा लेकर आज जो नजफ की आबादी है उस वक्त आबादी न थी, कूफा बसा हुआ था, लेकिन जनाजा वहाँ तक पहुँचा है। और कहा एक लौह निकलेगी जो बहुत ही चमकती हुई होगी और उस लौह में जो सिरारा होगा हजरत आदम की तरफ, वहीं पर मुझे दफन करना। आदम और नूह के दरमियान में अली दफन हुए और कब्र खुदी हुई मिलेगी, कब्र खुदी हुई थी। और एक वसीयत की है कि 4 कब्रें बनाना हसन मुख्तलिफ जगह पर और ये कब्र का निशान मिटा देना। जरा सोचो ये इमाम कौन है जो अमीर मोमिनीन है, ये इमामुल मुत्तकीन है। अरे उसकी कब्र का निशान भी किसी को पता न था। 6ठे इमाम के दौर तक कब्र का निशान मख्फी रहा। मैं कहूँगा अरे अहले बैत कैसी मुसीबत थी कि फातिमा ज़हरा की कब्र का भी निशान किसी को पता न था और वो भी कब्र छुपी रही और अली की कब्र भी पोशीद रही, बहुत दिनों तक किसी को पता न था। इसीलिए जनाजे में कोई न था। आज हम मिलकर जनाजा उठा रहे हैं, या हुसैन या अली, आपका जनाजा उठाने वाला कोई